गुर बिन ज्ञान ना होए, गुर बिन ज्ञान ना होए, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुर बिन ज्ञान ना हो, गुर बिन ज्ञान ना हो, ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे। ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना हो, गुर बिन ज्ञान ना हो। कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल, कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ न होए, गुर बिन ज्ञान न हो, गुर बिन ज्ञान ना हो। ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना हो, गुर बिन ज्ञान, गुर बिन ज्ञान, गुर बिन ज्ञान ना हो। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ। ਸਿੰਪਲੀ
ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋग बोलते हैं कि ज्ञान ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੋਲਾਪਨ ਰੱਖੋ। ਜਦਕਿ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ। ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ मैं सब ਦਾ ਭਲਾ करदा, मेरा कोई भला नहीं करता। तू समझदा मैं सब से प्यार करता हूँ, मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता। मैं सब पे विश्वास कर लैंदा, मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। मैनू कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरे ते कोई विश्वास नहीं रखता। मैं ही शरीफ आदमी हाँ, बाकी सारे चोर ने। इनू पता की कहते ने? हंकार, आकड़, ईगो। इनू गुरु पातशाह कहते ने आपस को जो भला कहावै, फिर आपस को जो भला कहावै, जो ये समझता मैं भला इंसान हूँ, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। आपस को जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट ना आवे। वो भला सीख नहीं सकता। साडे घरां च इंज हुंदा है, एक घर च 2 या 3 भरा हुंदे ने। जे तो सब्जी वधिया बनी है तो जिहड़ी चत्तर होंदी है वह कहती है मैंने बनाई है, पर जे सब्जी सड़ गई है वो बना गई होनी, नौकर ने जला दी होगी, माता जी ने कर दिया होगा। मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मैं तो कोई गलती करती ही नहीं। इंज अपने आप को हमेशा राइट पेश करना और अपने आप को हमेशा ईमानदार ते शरीफ ही पेश करना। साध संगत जी, आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे, वो सीख नहीं सकता कि सुधरते कैसे हैं, अपना सुधार किमें करीदा है। हाउ टू फिक्स अप माई सेल्फ, हाउ टू फिक्स अप माई फ्लॉज, मेरिया मिस्टेक्स
ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। अवगुणा ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ कि मैं कहाँ कहाँ से गलत हाँ, इस ज्ञान ਨੂੰ प्राप्त करना है। मैं क्या करता हूँ और उसके बाद क्या नुकसान हो जाता है। मैंने इससे नफ़रत करी, मेरे अंदर जलन पैदा होती है। मैं उसको देखते ही मेरे यहाँ पर मत्था कुटिया जाता है, तिवड़ी चढ़ जाती है, भवां चढ़ जाती है। नफ़रत की नज़र से देखता हूँ, मेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं किसी दे नाल उच्चा बोलदा 3-4 घंटे सिर पकड़ के बैठा रहंदा, मेरा सिर दर्द हो जाता है। जदों मैं किसी नाल उच्चा बोलदा, भैड़े बोल बोलदा, मेरी ज़बान थिड़क जाती है, मैं काँप जाता हूँ। मैं किसी की निंदा करदा तो इहदी गल इनू सुना दिंदा और फिर इनू कहंदा उन्हूं दस ना देना। अंदरों मैनूं डर लगा रहिंदा है कि मैंने निंदा की है, साडा ना ना लेना, देखो तुहानूं गल दसते रहे हैं, अंदर दी गल है। भई अंदर दी गल है तो तू क्यों दस रहा? तैनूं निंदा दी बीमारी लगी हुई है। तू रब जी वालों ठेका लिखिया है कि लोगों के पर्दे चुकने ने। सो इहदी की निशानी है कि मैं नम्रता च नहीं हाँ। कबीर मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशला, काहे की कुशला, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात। जदों यह भुलेखा पै जाता है, मैनू तो सब कुछ पता ही है, इस ओवर कॉन्फिडेंस के नाल सुनिया लिसनिंग बंद हो जाती है। मनुख कुछ भी सीख नहीं पाता है। नॉलेज इकट्ठी करना होर गल है, अपना सुधार नहीं कर पाता है। भुलेखा पै गया मैं सब कुछ जानता हूँ। सानू भुलेखा किवें पै जाता है? वाल रखने ने मैं रखे हुए ने, पगड़ी बननी है मैं बन्नी हुई है, गुरुद्वारे जाना चाहिए मैं जाता ही हूँ, सवेरे उठना चाहिए मैं उठता ही हूँ, पाठ करना मैं करता ही हूँ, वहाँ जाके परिक्रमा करके चौर करनी है मैं करता ही हूँ, फूल चढ़ाने मैं चढ़ाता ही हूँ। प्रभात फेरी नगर कीर्तन मेरे घर के आगे से निकलते, मैं 5 प्यारों को बादाम खुआ देता हूँ, दूध पिला देता हूँ। अब दसो मेरे को केड़ी नॉलेज की लोड़ रह गई है? मैं तो परफेक्ट सिख हो ही गया। गुरु पातशाह कहते ने जे तू सिख नहीं हो गया, तैनू हाउ टू बी अलाइंड विद विजडम, सतगुर दी मत दे नाल इकमिक किवें होईदा उहदे बारे कोई नॉलेज नहीं है। जे नॉलेज नहीं है कि सतगुर दी मत दे नाल मन की मत नू अलाइन किवें करीदा, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। अपनी नदर को, अपनी सोचनी को, अपने पैराडिम शिफ्ट को सतगुर के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर, पैराडिम शिफ्ट कर, अपनी सोचनी बदल। नहीं बदली
सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने में आवे। अपने भाणे जो चल रहा पाई, जो अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलता है, विछड़ चोटा खावे। ये जो किया था, ये तो कर्म कांड किया था। आए थे, अंदर आए थे, पैर धो के आए थे, हाथ धो के आए थे, मत्था टेका था, घूम के चले गए थे, फूल चढ़ाए थे, चौर करी थी, रुमाला चढ़ाया था। ये कोई जीवन थोड़ा बदल जाएगा। मैनू खिमा करना, अमृत वेले भी उठना चाहिए, मैनू खिमा करना, पाठ करना चाहिए, मैनू खिमा करना, बाहरों सफाई करके ही असी अंदर आने हाँ। मैनू खिमा करना, असी सत्कार प्यार नाल चौर करते हैं, रुमाला चढ़ाते हैं। पर जे मैं सोच ला मैंने धर्म कर्म पूरा कर लिया, मन जाना सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशलात। अब कुशल कैसे हो सकता है? सुखी नहीं तू हो सकता। मन करके तू सुखी नहीं हो सकता। आत्मक चैन नहीं मिलेगा। दुनिया कहेगी है बड़े गुरसिख ने, बड़े गुरमुख ने, बड़े शरीफ ने, बड़े धर्मी ने। ये तो तां पता लगती है जदों साडे नाल कोई राह पिया जानी है जां वाह पिया जानी है। मैं लोगों को कहता सुनिया, ओ जी असी अपनी धी का रिश्ता इन्हां नाल कर दिता है, तो जोड़ियां च सतनाम वाहिगुरू करके जोड़े चुकते सी और बड़े शरीफ लगे सानू। ये तो विआह होने तो बाद साडी कुड़ी नूं उन्हां ने दाज दे नां हेठा तंग किया। ओ जी असी तो इन्हां नूं कीर्तन करदिआं देखिआ, असी तो गुरुद्वारे सेवा करदिआं देखिआ। ओ जी असी तो इन्हां नूं लंगर पकांदिआं देखिआ। ओ जी असी तो इन्हां नूं किरपान पाई हुई सी, ये तो अंमृत इन्हां ने छकिया होया सी। असी सोचिया बड़े शरीफ ने। सत्संग जी, अंमृत छकना माड़ी गल नहीं है। अकाल तख्त की रहत मर्यादा अनुसार मैंडेटरी है। गुरुद्वारे आना भी अच्छी गल है, पाठ करना भी अच्छी गल है, किरपान पाना भी पंज ककारां दा कीमती हिस्सा है। पर जे मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होया तो मैं बाहरों एक भेख बना के पोर्ट्रे किया कि हम धर्मी हैं। सेवा कर रहे थे, हमने तो अपनी बेटी ब्याह दी, इन्होंने दाज के नाम पर तंग किया। इन्होंने दाज बड़े इनडायरेक्ट ढंग से मांगा। जी सानू कुछ नहीं चाहिए, तुसी अपनी बेटी 3 कपड़ियां च व्याहनी है, फिक्स डिपॉजिट कराओगे तो ये ना ही होएगा ना, असी केड़ा वरतना है। कार भेजोगे तो इन्हों ने ही वरतनी है ना, मकान बना दोगे, फर्नीचर बना दोगे तो इन्हों ने ही वरतना है। इनडायरेक्ट ढंग से सब कुछ मंग लिया, क्योंकि भुलेखा पै गया, मन जाने सब बात। कुशल नहीं रह सकते, काहे की कुशलात हाथ दी भूए पर है। सत्संग जी, अज का श्लोक मैं फिर अज कल के प्रोग्राम और परसों के प्रोग्राम मुताबक स्पॉन्टेनियसली तुहाडे नाल सांझ कर रहा। गुर बिन ज्ञान न होए असी समझना है। किनू गुरु कहते हैं? रुमाला चढ़ा दिता, रखड़ी वाले दिन आके पीड़े नूं तुसी रखड़ी बन दी, पीड़े नूं दबा घुटा दब घुट लिया, पालकी नूं आके मत्था टेक लिया, पालकी संगमरमर दी नहीं तो चांदी दी बना ली, चांदी नहीं तो सोने दी बना ली। इनू की गुरु प्राप्त करना कहते हैं? घर ब्याह शादी है, जम्मण मरण है, जाके गुरुद्वारे रुमाला चढ़ा दिता, इनू गुरु प्राप्त करना कहते हैं? लस्सी नाल थड़े धो ले कि गुरु प्राप्त हो गया? सत्संगत जी, बड़ी अच्छी गल है, साडी सिख कौम के अंदर असी जोड़ियां की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पहला तो मेरे मन अंदर आवे कि मैं कोई अमीर ज़्यादा नहीं हाँ, कोई उच्ची जात का नहीं हाँ। मैं बिना वितकरे तो, बिना किसी स्टेटस तो, बिना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब देखे तो मैं किसी दे जोड़े चुक के रख सकां, साफ कर सकां, नम्रता नाल चुक सकां, मनु हंबलनेस आएगी। यह गुर है, यह टेक्नीक है, यह विधि है, यह तरीका है। हाउ टू प्रैक्टिस दिस गुर।
ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਪਕੌੜਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੋਈ ਦਰੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸੇਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਬਲ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਭ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਿਤ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ,
सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा की सफल। जा सतगुर का मन मन्या, जा सतगुर पाप कसमल पन्ने, तपाप कसमल पन्ने, ससेवा कीती सफल है, ससेवा कीती। हुण देखो गुरु पातशाह सेवा दी डेफिनेशन समझा है, कॉमन मैन नू, हर इंसान को आराम से समझने के लिए बता रहे हैं। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। मन का मतलब की है, सतगुर जी तो शरीर नहीं है, शरीर करके मन होता है। कुत्ते का मन शरीर करके कुत्ते वाला होता है, बिल्ली का मन शरीर करके बिल्ली वाला होता है, सांप का मन उसका होता है, इंसान का मन इंसान का होता है। गुरु साहब शरीर है नहीं ने, शब्द गुरु ने। उथे मन का मतलब आएगा पैराडिम, मन का मतलब आएगा गुरु का हुक्म। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का हुक्म मनेगा ता। सतगुर की कह रहा है, नम्रता रख्या कर। सतगुर की कह रहा है, यहाँ से जात को हटा दे। सतगुर की कह रहा है, अमीर गरीब का वितकरा ना करया कर। सतगुर कह रहा है, कुदरत के सब बंदे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा ना करया कर। सतगुर ये हुक्म सिखा रहा है, यह हुक्म समझा रहा है, यह विजन दे रहा है, यह इनसाइट दे रहा है। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। मन का मतलब हुक्म, सुने मैसेज। जहाँ सतगुर का मन की मतलब हुक्म, जहाँ सतगुर का मन मन्या, अगर हुक्म मन्या, तां पाप कसम्मल भन्ने, तां भैड़े ख्यालां दी आदत जाती है, तां मंदा सुभाਅ छुटदा है। मंदे सुभाਅ करके छुट जाना पाप कसम्मल भन्ने। सो असी गल कर रहे सी, सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। साध संगत जी, अज हुणे ना प्रोग्राम साडा समाप्त होएगा। जदों समाप्त होएगा असी आनंद साहब नहीं पढ़ांगे। मैं तुहाडे अगे बेनती करांगा, इत्थों दीयां संगतां ने मैनूं रिक्वेस्ट कीती है कि तुसी संगतां दे नाल सवाल जवाब क्यों नहीं करदे। सो असी आप जी नाल सवाल जवाब करांगे। यह वन वे ट्रैक नहीं है, यहाँ पर एक आदमी बैठ के बस बोल के चला गया, बाकियों को समझ आया या नहीं आया, उनके मन के अंदर कोई सवाल पैदा हुआ है, वो सवाल करना चाहते हैं। तुसी इत्थे आना, यह नाल नाल टीवी रिकॉर्डिंग होएगी और तुसी सवाल करना। हो सकता है तुहाडा सवाल बड़े लोगों नूं कम आवे, बड़े लोगों के मन अंदर सवाल पैदा होंदा है। मैं एक हुण सवाल बनान लगा। वीर रणजीत सिंह जी और महेंद्र सिंह जी और तुहाडे इत्थे सुखवंत सिंह जी, या इत्थे रणजीत सिंह जी एक होर, या सुदागर सिंह जी होर, मनु 4-5 नाम ही पता लगे ने जिहड़े एयरपोर्ट ते मनु लैन आए सी। बाकियां दे नाम मनु नहीं पता। पर मैं तुहाडी इजाज़त मंग रहा कि तुहाडी प्रबंधक कमेटी मैनू इस तरह अलाउ करेगी कि क्वेश्चन लिख के दे दिओ, मेरा ये वीर इत्थे पढ़ देगा, या तुसी माइक ते आके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। असी बहस नहीं करांगे, जो जिसका आंसर अर्थ मुझे नहीं आता मैं माफ़ी मांग लूँगा। इतनी हिम्मत मैं रखदा हाँ कि मैं कहां इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हाँ। मैनू जो गुरबाणी अनुसार समझ आई, सो हुण मेरा सवाल है। सवाल तुसी सोचो, असी भाणे दा मैना की रखा होया? असी भाणे दा मैना रखा होया है, घर में कोई बीमार हो गया, घर में कोई मर गया,
मकान की छत गिर गई, बिजनेस डाउन हो गया, एक्सीडेंट में कुछ नुकसान हो गया, एनीथिंग घाटे दी, एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव, एनीथिंग लॉस वाली, ये सारे का नाम असीं गुरु का पाना रखा होया कि नहीं रखा होया? इनू तो पाना नहीं कहते ने। मैं अपनी बच्ची नू गलत जगह विआह दियाँ, क्राइटेरिया मेरा गलत होए, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਧੀ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ खुल के होनियाँ चाहिए कि गुरु का पाना का मतलब होता है गुरु साहब जो कहते हैं। गुरु साहब ये नहीं कहते हैं कि तुसी अपने मन मर्जी दे समाजक बनाए हुए क्राइटेरिया मुताबिक अपनी बेटी को या बेटे को कहीं पर ब्याह दो, बाद में कुछ नुकसान होता उसका ना पाना रख लो। वो शराब पी के आए मारे, असी कहे तू पाना मन के रहना है। ये अज दे नौजवान मुंडे पढ़े लिखे कुड़ियाँ ये गल्लां नहीं मनते ने। ये साडा पुराना सोचनी दा ढंग है। पाने का मतलब होता है रज़ा, रज़ा का मतलब होता है पाना, रज़ा का मतलब होता है हुक्म, रज़ा का मतलब होता है कुदरत के नियम, रज़ा का मतलब होता है गुरु ने जो किया वो गुरु का पाना। फर्ज करो मैं घर दी माँ हाँ, मैनू ख्याल सी कि घर अंदर दुध पिया है और मेहमान अगर आए तो उन्होंने वास्ते चाह बन सकती है, लेकिन मेरे बेटे ने या बेटी ने या बहू रानी ने या नौकरानी ने वो दूध को कंज्यूम कर दिया। इस वेले घर अंदर दूध नहीं है। मेहमान आए, मैंने कहा बैठो मैं चाह बना दी हाँ। जदों मैं जाके देखा पति ने कहा कि चाह दूध तो नहीं है, तो मैं एक सेंटेंस वरत दी हाँ, तो कहती हाँ मेरे भाणे दूध पिया होया है। मेरे भाणे मतलब मेरे ख्याल में, मतलब मेरी सोचनी के अनुसार दूध है, पर उथे नहीं है दूध। इंज जदों आएगा सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे दा मतलब है नहीं है कि गुरु नुकसान कराता है, गुरु मुसलमान और हिंदू को लड़ा देता है, इनू गुरु का पाना नहीं कहते ने। गुरु सिख को हिंदू से लड़ा देता है, इनू गुरु का पाना नहीं कहते ने। मिनॉरिटी को मेजॉरिटी से मरवा देता है, इनू गुरु का पाना नहीं कहते ने। सो अल्टीमेटली मार्केट में बिजनेस डाउन हो गया, डॉलर वैल्यू गिर गई, इनू गुरु का पाना नहीं कहते ने। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਖੇੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਖੇੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। कुदरत के जो नियम है ना उसको लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं। कुदरत के नियमां नूं विल ऑफ गॉड के कहते हैं। कुदरत के अंदर नियमा करके बलिहारी कुदरत वसिया उसको गॉड बोलते हैं। इस सृष्टि में जो नियम चल रहे हैं इनको गुरबाणी भगवान बोलती है। कुदरत करके वसिया सोए। भगवान कण कण में भगवान है, सब जगह मौजूद है। इसका मतलब पता है कि है सब जगह रब जी का नियम चलता है। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने में आवे ओनू असी रोज़ सवेरे पढ़ते हैं कि सचिया रही है कि कूड़ा टुट्टिया पाल, अगे पढ़ते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ए नानक लिखिया नाल की होंदा है? साध संगत जी कदे इस तरीके नाल रुक रुक के बाणी विचारोगे ना साफ साफ समझ आती जाएगी। नानक लिखिया नाल का मतलब यह नहीं है भगवान ने तेरे अंदर किस्मत लिखी हुई है। नो, कोई किस्मत नहीं लिखी हुई। कोई नहीं लिखा हुआ मेरी उम्र 6 साल नहीं 60 साल होगी और इतने दिन और इतने महीने होगी, ये कुछ नहीं लिखा हुआ।
संभल संभल के जीवो तो 60 वाला 70 जी सकता है, संभल संभल के ना जियो तो 60 वाला 40 ਵਿੱਚ हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ਅਸੀਂ अपने जीवन ਨੂੰ, अपनी जीवन ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਕੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 2000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਰਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, तेरी महीने की कमाई 2 करोड़ आ जाएगी। पर गुस्सा करने से, पापा मम्मी के साथ गुस्सा करने से, या मम्मी पापा की तरफ से बच्चे को गुस्सा करने से, या बॉस बन के अपने एम्प्लॉय को गुस्सा करने से, थल्ले कम कराने वाले दे नाल गुस्सा कर करके करा लैण दे नाल सेहत अपनी खराब हो जाती है। तो 60 वाला हो सकता 40 विच हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ अप टू यू। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। If you do not live according to the laws of nature, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੁਰ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੈ कछुअक पढ़िए ज्ञान। अपने मन को समझाने के लिए कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਨੀਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਥਡ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ, कबीर बेड़ा जरजरा, कबीर बेड़ा जरजरा, बेड़ा जरजरा, फूटे छेक फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तिर गए, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार, डूबे जिन सिर पार,
कबीर बेड़ा जर्जरा, बेड़ा जर्जरा, फूटे 6,000। मेरी जिंदगी दा बेड़ा जर्जरा है, इसमें हज़ारों छेद हैं। मेरी जिंदगी दी कश्ती अंदर अनेका छेद ने। फूटे 6,000। छेक दा मतलब की है? मेरियां कमजोरियां। छेक दा मतलब की है? मेरे अवगुण। छेक दा मतलब की है? काम क्रोध लोभ अहंकार आशा तृष्णा निंदा चुगली झूठ ऐसियां मनु कितनी आदतां पईयां होईयां। मेरे छेक है हिपोक्रेसी, मन होर मुख होर। मेरा छेक है मैं गिरगिट की तरह रंग बदल लेता हूँ। मेरा छेक है मैं अपनी गल करके परता देना। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मेरा छेक है मैं लोगों को मिसअंडरस्टैंड करता हाँ। मेरा छेक है मैं सच को ध्यान से सुनता नहीं हूँ। मेरा छेक है मैं दूसरे को चांस नहीं देता कि तुम भी बोलो, हो सकता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बेटर हो, ठीक हो। साडे घरां च इंज ही हुंदा है। जेड़ी पत्नी सारे घर ते रोब चाढ़न लग पैंदी, वो कहती बस मैं ही मिसिज राइट हाँ। और ज़्यादातर पति नहीं, मैं घर का मर्द हूँ, जो हम कहेंगे बस वही होगा। मैं ना मानूं। तुसी वो गल सुनी हुई है ना, पति आके बोलता है मैंने शर्त लगाई है, खरगोश की 3 टांगे होती हैं। निक्का बच्चा बोला दादा आप जो शर्त लगाए हो ना हार जाओगे। ये देखो मेरी किताब में बना हुआ है, खरगोश की 4 टांगे होती हैं, 3 नहीं होती हैं। ओदी दादी भी बोली बच्चा ठीक कह रहा, तुसी शर्त हार जाओगे। वाइफ बोली हाँ जी पिताजी आप शर्त हार जाओगे। पता ही कहता है नहीं मैं शर्त नहीं हारूंगा। सारे ने पूछा क्यों नहीं हारोगे? कहता खरगोश की चाहे 3 टांगे होती है चाहे 4 होती हैं, मैं शर्त नहीं हारूंगा क्योंकि मैं मनागा ही नहीं। मैं ना मानू वाला मेरा छेद है की है, मैं सच सुनता ही नहीं। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000। साडे गुरुद्वारियां विच सच दा प्रचार क्यों नहीं होया? प्रबंधकां ने भी यही गल रखी। भाई साहब जी, ग्रंथी जी, सेवादार जी, कोई विचार करन वाला ओदी गल नहीं सुनते ने। ओए बड़ा है सानू पढ़ाना है, मैं इत्थे 30 सालों तो प्रधान लगा होया वां, तू कल आया मैनू पढ़ाना है। इन्हां चीज़ों के कारण पता की होया? सच का प्रचार नहीं होया। इस करके सच का प्रचार करन वेले जिन्हें शराब के अगेंस्ट बोलिया प्रबंधकां ने उन्होंने नौकरी तो कट दिता। जिन्हें शराब के अगेंस्ट बोलिया जो नौकरी नहीं करता उन्होंने गुरुद्वारे टाइम देना बंद कर दिता। मुड़ के उस रागी नूं, उस कथाकार नूं, उस विचार करन वाले नूं बुलाना बंद कर दिता। इस तरह तुसीं देखिया है अजकल ये भी गल प्रचलित हो गई है किहड़े बंदे नूं टीवी टैलीकास्ट से बोलन देंगे, किहड़े बंदे नूं टीवी टैलीकास्ट से नहीं बोलन देंगे। ये भी सब कुछ की चल रहा है? धक्केशाही। सच का प्रचार रुक गया। लेबल हो गए किहड़े बंदे प्रचार करनगे, किहड़े बंदे प्रचार नहीं करनगे। खैर कबीर जी कहते ने मेरा बेड़ा जर्जरा है, फूटे 6,000 है। हरूए हरूए तिर गए जिन्होंने अपने छेदों को संभाला, पैचअप किया और आस्ता आस्ता अपने बेड़े नूं समुंदर चों लंघाया। साडी जिंदगी च समुंदर है, रोज़ छल्लां आंदियां ने, रोज़ उतार चढ़ाव होंदा है, रोज़ खुशी गमी सुख दुख निंदा चुगली मान अपमान होंदा रहिंदा है। साडे घरां दे विचकार ਇਹ ਜਿਹੜਾ रोज़ पल पल कब्बू जीड़ा उप चढ़त है कब्बू जाए प्याले लोभी जीड़ा थिरना रहता है चारे कुंडा पाले, ये साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। साडा मन टिकदा नहीं है। असी बारों पाठ कर लेंदे हाँ, फिर लोग आके मैनूं क्वेश्चन करते हैं वीर जी मैं पाठ करदी हाँ हथों गुटका छुट जाता है, वीर जी पाठ करदे हाँ नींद आ जाती है,
वीर जी पाठ कर दिया, मन इधर उधर चला जाता है, दसो जी की करिए। पाठ समझ के नहीं कीता, इधर उधर चला ही जाएगा, ओदी निशानी है। फर्ज करो मैं पाठ समझ के नहीं कीता, तो ओदी निशानी पता की है, मैं कर्म कांड करांगा। पाठ पढ़े और वेद विचारे निवल पयंगम साधे, पंच जना से संग छुटके हो, अधिक अहंग उद्बादे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म ने का हार पर्यो, स्वामी के द्वारा दीजय बुद्ध विवेका। दूजी गल, जे मैं पाठ समझ के नहीं कीता, मेरे अंदर दिनों दिन डर वधदा जाएगा। जे मैं पाठ समझ के नहीं कीता, दिनों दिन मेरे अंदर चिंता, फिकर, डर, तौखला बनता जाएगा। मैं भावें इथों तोता रटनी का पाठ करता रवां, करदी रवां, मेरे छेदों से पानी आना शुरू हो गया, मेरा टाइटैनिक डूब जाएगा। कबीर जी कहते हैं, हरूए रूए तिर गए डूबे जिन सिर पार, जिन्हों ने सिर उत्ते भार लै लिया अपने अवगुणा का, उनके छेदों में से, समुद्र में से पानी आ जाता है। जिंदगी अंदर जरा जी कोई गल हो जाए, हाय काके का जन्मदिन है, मते केक ना आवे, हाय मते बत्ती चली जाए, हाय पता नहीं गुब्बारे आएंगे कि नहीं आएंगे, हाय वो तू आएंगे कि नहीं आए, टोपी आएगी कि नहीं आएगी, हाय लोग आएंगे कि नहीं, लूट बैग लेके आए कि नहीं आए, हाय उनको बुलाया कि नहीं बुलाया, केक तैयार हुआ कि नहीं हुआ। बस इन्नी गल तो फिक्र शुरू हो गया। बच्चा, मैं कितनी नूंह नूं अपनी सस के नाल लड़ता है, माता जी कार आ जानी चाहिए 2 बजे, बच्चे ने 2 बजे आना है, 3 बजे रोटी खा के होमवर्क करन जाना है, ट्यूशन पढ़न जाना है, उन्हें स्विमिंग जाना है, उन्हें डांस की क्लास जाना है, माता जी तुसी डॉक्टर को दिखाओ या ना दिखाओ, कार इत्थे आ जानी चाहिए ड्राइवर समेत। इस तरीके दे नाल अंदर की है डर। अगर तेरा बच्चा एक दिन क्लास में नहीं गया, अगर तेरा बच्चा एक दिन ट्यूशन में नहीं गया, अगर एक दिन सो कार्ड स्विमिंग या डांस की क्लास में नहीं किया, तो क्या हो जाएगा। माता जी रोज तो नहीं जाते डॉक्टर के पास, तेरी रिलेशनशिप खराब हो गई, समुद्र में टाइटैनिक डूब गया घर का। इंज निक्की 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 गल दे छेदां दे नाल पानी अंदर आ जाता है। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे छे, तेनू टेक्निक नहीं समझ आ रही है, गुर समझ नहीं आ रहा है। इनू कहते ने गुर बिन ज्ञान ना होए। एक्चुअल में समझ नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिकली उसको जियोगे नहीं। गुरुद्वारे लंगर पका लेना, घर सस नूं पानी ना पुछना, ओनू रोटी ना पुछना, गुरुद्वारे लंगर पकाई जाना, अपनी नूंह वल प्यार नाल कदे रोटी पका के उन्होंने ना देनी। कित्थे बुजुर्ग इंज करते हैं, कित्थे नौजवान इंज करते हैं। सो साध संगत जी, असी सेवा, गुरु ज्ञान, कितने सारे कॉन्सैप्ट बड़ी छेती छेती कवर कर रहे हैं, और मैं कोशिश की है कि छेती छेती भी मैं सहज नाल बोला। सो मेरी निशानी होएगी कि मैं कर्म कांड करांगा जे मैं पाठ समझ के नहीं कीता। मेरी एक और निशानी होएगी, जितनियां गल्लां मैं कर रहा, ये भूपिंदर सिंह की इंटरप्रटेशन नहीं है, दिस इज नॉट द वे आई एक्सप्लेन। एक गुरु पातशाह जी की मत अनुसार गुरबाणी जो ही सिर्फ समझ रहे हैं। हुण गुरबाणी च आएगा, क्या पढ़ी है अबे, ऐसे क्या सिर्फ पाठ करते रहते हो, क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। जे मेरे अंदर सहज नहीं आया तो गल अपने आप ही निशानी है, प्रैक्टिकली शो कर रही है कि मैं बाणी समझ के नहीं पढ़ी और मेरे अंदर सहज नहीं आया। अपने ते चेक आप लगाना है। पाठ करना माड़ी गल नहीं है। तोता रटनी 60-60, 70-70, 80-80, 90 साल तक करते रहना और अपने आप को पूछना भी ना, मैं कब तक ऐसे तोता रटनी करता रहूँगा, करती रहूँगी। समझना थे है ना। सो मन नूं समझाण वास्ते गुरु पातशाह एक पहला प्रतीक वरतते ने। जैसे घड़े के अंदर पानी रखा जाता है, कुंभे बद्धा जल रहे। कुंभ मतलब घड़ा, घड़े के अंदर बांध के रखने के लिए पानी को घड़े की ज़रूरत पड़ती है। घड़े के अंदर रखो, पानी ठहर जाएगा, फैलेगा नहीं, गिर नहीं जाएगा। कुंभे बद्धा जल रहे। जल बिन कुंभ ना होए, लेकिन ये वाला घड़ा जल के बिना बनता भी नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब
ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੋ ਕਾਰਡ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਫਰਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਾ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, बढ़िया कार, बढ़िया मकान, प्लाज्मा टीवी, बाथरूम के फिक्सचर्स, पर्दे, बेडरूम की चादर के साथ मैच करने वाले, क्रॉकरी के साथ चम्मच, छुरी कांटे के साथ सोने के रंग का चढ़ा हुआ गिलास का पानी, ऐसा कुछ सानू बहुत कुछ आता है। इस तो इलावा सानू एक और आता है, घर में अगर किसी की शादी हो तो कैसे डांस की प्रिपरेशन करते हैं, कैसे दिन रात पागल होए रहते हैं डांस सीखने के लिए। जो बड़ा वड्डा जग है, जिवें गुरु साहब ने बड़ा हुक्म किया है, ओ तुसी गुरु के सिखो, जदों तुहाडे घर विआह होवे सारे नूंहां धीआं पुत्तर वड्डे छोटे डांस सीखना। पता नहीं कित्थों आ गया, दिन रात मेहनत लगी हुई। मैं जिस कंट्री जा रहा, जिस टाउन जा रहा, ਬੱਚੇ ਕਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਂਸ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਲੋਗੇ, ਪਾਸੇ ਹਿਲਾ ਲੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚੇ। ਕੀ कराना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू शो? हमको डांस भी आता है, हम भी जानते हैं कपड़े कैसे उतारते हैं, हम भी जानते हैं कैसे लहंगा पहन के नाचते हैं। तुसी फिल्मां दी अभिनेत्री बनना है या तुसी अपने घरां दा जीवन बनाना है। जिस घर च तुहाडी बेटी विआह के जाए, उस सस नूं सवेरे उठ के पाठ सुनाए, इशनान करे, नम्रता नाल चाह पेश करे। सस भी कहेगी मैं भागां भरी, मेरे पुत्तर दा घर बन गया, सोहनी सुचज्जी कुड़ी साडे घर आई है, गुणा दा शिंगार, गुणा दा दाज लेके आई है। एक खुआण के बदले तुसी की डांसर भेजोगे वहाँ पर? क्या तुम पेश करना चाहते हो कि मैं अपनी बेटी नूं कैबरे डांसर बनाया है या की बनाया? सासंग जी मैं बहुत दुख के नाल कह रहा, पूरी कौम नूं, पूरी धरती दे लोकां नूं रिक्वेस्ट कर रहा, तुसी किहड़ी गेम विच पै गए हो? डांस होएगा तो शराब भी होएगी। ए सारे पता की हो रहे ने, सानू साडे घरां विच ना विआह शादी जम्मण मरण वेले ना सब कुछ होंदे होया डील करना नहीं आ रहा। वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डील, बैलेंस रहना, सबर संतोख हिच रहना। एक बीमारी चल पई है डेस्टिनेशन वैडिंग। पिछे मैं किसी का सुनया डेस्टिनेशन वैडिंग, तुसी ये वर्ड नू सारे जानते हो भाई, जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर शादी नहीं करेंगे, दूजे टाउन में जाएंगे, दूजी कंट्री में जाके करेंगे। वो कंट्री तो करा के आए, वो सारे दे सारे बस अंदर एक्सीडेंट हो गया, मुंडा कुड़ी समेत सारे मर गए। फायदा की होया? अपने घर च आराम नाल कर लो, सादगी नाल कर लो, ना रखे आनंद कारज। आनंद कारज का मतलब की होंदा है? पूछते वीर जी आनंद कारज क्या होता है? मैं क्या आनंद कारज होता है सिंपली लामा और अगे पीछे नथिंग। Simple. Simplicity is called modernism. The more you are modern, the more you are simple. The more you are modern, the more you are honest. The more you are simple, the more you are
लेस दिखावे वाला, तुमको शो ऑफ की जरूरत नहीं रहती है। देखो लोगों ने मॉडर्न का की बनाया है, फट्टी जी जीन पा लो, प्रैस नहीं करनी पेगी, भावें वो 6 महीने 1 साल पुरानी होवे, भी मैं मॉडर्न है। इधर मॉडर्न नहीं है, पर वो की कर रहा है, मैं दिखावे में बिलीव नहीं करता। सो मॉडर्निज्म है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन के डिसग्रेसफुल कपड़े पाओ, सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन के रीत रिवाज दिखावे पाखंड कर्मकांड करो। गुरु पातशाह कहते ने तेरे मन ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ना एक गृहस्थी जीवन चाहिए है, जल बिन कुंभ ना होए, पर तेनू ਇਹਦੇ अंदर ही ना सतगुर की मत का ज्ञान भी लेना है। ज्ञान का बद्धा मन रहा है, तेरे मन ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ वास्ते ना सतगुर की मत का ज्ञान लेना पेगा। ਕਿਹੜਾ ज्ञान? परसों भी मैं बेनती की थी, चांद तारे कितने हैं, तुम पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली थे, अगले जन्म में सांप बन जाओगे, और तुम्हारे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, पामिस्ट्री क्या कहती है, तुम जेमिनाई हो के स्कॉर्पियो, तुम्हारे ज़ोडिएक साइन क्या कहते हैं। इन्ह ज्ञाना की गल नहीं चल रही, क्या करने से क्या हो जाता है, इस ज्ञान की गल नहीं चल रही। कौन सा नीला काला पत्थर पहने तो क्या हो जाएगा, कौन से मंगलवार सोमवार शुक्रवार को क्या करे तो क्या हो जाएगा, इस ज्ञान की गल नहीं चल रही। ज्ञान का बद्दा मन रहा मीन्स वो वाली नॉलेज लेनी जिससे मनु मेरे जिंदगी दे समुंदर विच उठद्या बैठद्या मेरे टाइटैनिक नू संभाल के चलाण दी जाच आ जाए। ज्ञान का मतलब मनु सुमत आ जाए कि मैं किस तरह जीना है। ज्ञान का बद्दा मन रहा है, नॉलेज लेनी पड़ेगी, डायग्नोस कराना पड़ेगा। इस तो बाद अगला है गुर बिन ज्ञान है। गुर का मतलब उत्थे की है, सतगुर दी मत दी टेक्निक के मुताबिक जिए बिना वो ज्ञान नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं होएगी। फर्ज करो मैं टीचर हूं और मैंने बच्चों को लेक्चर दिया, बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से सेहत खराब हो जाती है, शराब पीने से इंटेलेक्ट खराब हो जाता है, शराब पीने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, शराब पीने से लीवर कमज़ोर हो जाता है, शराब पीने से शुगर हो जाती है। इस तरीके के नाल मैं बच्चों को पढ़ावां, पर शामी पता लगे मैं पींदा, इनू पता ही कहते जो नॉलेज इकट्ठी कीती है ਉਹਦੇ ਤੇ प्रैक्टिकल आप नहीं टुरदा। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ गुरु की जिहड़ी मत लैंदे हाँ, जे उस मत नूं लैके जदों प्रैक्टिकल टुरदे हाँ ना, उन्होंने गुर दे मुताबक उस मैथड दे मुताबक तां जिहड़ी रियलाइजेशन होंदी है ना, उस रियलाइजेशन नूं ज्ञान कहंदे ने। फॉर एग्जाम्पल निक्का बच्चा है, निक्का बच्चा, तुसी दो किस्मां दे निक्के बच्चे बनाओ, एक साडे वर्गे जिहड़े वड्डे हो गए ने। सानू बचपन में बताया मीठा खाने से, चॉकलेट खाने से, कैंडी खाने से दांत खराब हो जाते हैं। असी सुनिया, लेकिन उस गुर टेक्निक विधि मैथड नूं अपनाया नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। नुकसान पता कि है, वड्डे होके साढ़े दंद खराब हो गए, जल्दी जल्दी खराब हो गए, कीड़ा लग गया, टूट गए दंद। एक किस्म का बच्चा। दूसरा बच्चा, एक 5 साल के बच्चे नूं मैं पूछया, बेटा आप ये चॉकलेट खाओगे? कहता नहीं, दादी बोलती है चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। उन्हें गुर पकड़ लिया, उसने चॉकलेट नहीं खाई, उसने अपने मन को रोकया। दादी कहती है चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, पापा मम्मी मना करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, मैं नहीं पीता। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े ते डिपेंड करता है। गुर बिन ज्ञान ना होए ਦਾ मतलब है एक्चुअली च रियलाइजेशन बाद विच होंदी है। एक बच्चा है, वो लाल रंग की कोई चीज़ देखता है, ਉਹਦੇ ਤੇ हाथ रखना चाहता है। असी उसनों कह रहे हैं ये लाल रंग है लेकिन ये अंगारा है, ये हीटर है, ये आग लगी हुई है, बेटा इस पर हाथ रखोगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा।
ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਓਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਓਵਨ ਗਰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਓਵਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਓਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ। 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਓਵਨ ਠੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, क्योंकि उसको ये हो गया ये गर्म होता है, इसे हाथ जल जाता है। साध संगत जी, ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਡ के मुताबिक नहीं जिया, तेरे को रियल रियलाइजेशन वाला ज्ञान नहीं होगा। गुरबिन ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾ हृदय कुछ उद्य जाए, खाली आकर यहाँ पर सिर से मत्था झुक के टेक देना बेकार है। ਲੇਕਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਚੌਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰ, ਟੈਕਨੀਕ, ਮੈਥਡ कि मुश्किल के टाइम डील कैसे करते हैं। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਣ, ਜੰਮ ਆਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ तस्कर नहीं लेवै, जल में डूब नहीं सकता, कोई चोर उचक्का इसको लूट के नहीं ले जा सकता। किसको? किसको? गुर का बचन को। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे, जल में डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द गुरु है। जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवे, भा ना साकै जाले, आग उसको जला नहीं सकती है। ਇਹਦਾ ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਇਮੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੇਰੇ ਆਸਮਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ। ਗੁਰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕ, गुरु मतलब विधि, गुरु मतलब प्रैक्टिकल लिविंग का तरीका। अगर वो नहीं करेगा गुरु बिन ज्ञान, तेरे को रियल रियलाइजेशन नहीं होगी। मैं एक बारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाया सी कि एक बंदे ने अपनी अटैची के अंदर कस्टम तो निकलन वेले ड्यूटीएबल आइटमां पाईयां होईयां सी। वो बंदे ने मैनू बाद विच दस्सिया। मैं क्या अच्छा फिर तुसी किस तरह निकले? कहंदे गुरु ने हाथ दे के रख लिया। बाबा जी बड़े मुसीबत वेले। मैं क्या की होया? कहंदा वीर जी साडी फ्लाइट ना सवेरे 7 बजे पहुँचनी सी। जिस ऑफिसर को हमने रिश्वत दी हुई थी
वो ऑफिसर की कस्टम पे ड्यूटी थी। मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहता वो ऑफिसर आया ही नहीं। मैं लाइन पे लगा हूं और मुझे पता लगा वो वाला ऑफिसर वहां पर नहीं खड़ा। मैं डरता रहा। मैं पता की शुरू किया, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, बाबा जी इस बारी बचा लो, अब की बार बख्श बंदे को, बाबा जी ताती आन ला गई, गुरु जी बचा लो, रख लो, मेरा सतगुरु रखवाला हुआ। कहना मैं इंज करता रहा। एन 8 बजे मेरी वारी, लंबी लाइन सी, वो अफसर बदल गया। जेड़ा अफसर ड्यूटी लगा रहा सी वो अफसर बदल गया। दूजा अफसर आया, उसने क्या अभी नई नई ड्यूटी है, हम चाय पी रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को निकाल दिया। बाबा जी ने हाथ दे के रख लिया। इंज बाबा जी हाथ दे के नहीं रखते। इस चीज़ नाल बाबा जी इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक बंदे ने इत्थे गुरु नानक साहब की फोटो रखी हुई, मनु कहता भुपिंदर सिंह जी ये पिछे ना 12 महीने का कार्ड वो बनया होया, चार्ट बनया होया है, साल का कैलेंडर है, यह तुसी भी रख लो। मैं क्या तुसी की ये फोटो छापी हुई है, गुरमत तो फोटो नूं नहीं मनते ने, तुसी तो शराब पींदे हो। पता की कहता है, ਉਹ मैं शराब पी के टुन नहीं होंदा, मैं शराब पी के नशा मनु नहीं चढ़ता। मैं क्यों? कहता हर वेले गुरु जी नूं नाल रखदा। असी की कीता होया, साडे घरां शराब चलदी है, असी अखंड पाठ भी रखा लेंदे हां, साडे घरां च कीर्तन भी करा लेंदे हां, फिर जदों अखंड पाठ भोग पिया सब कुछ होया, फिर शामी शराब की पार्टी भी कर लेंदे हां। यह सारा असी पखंड करते हां। इहनूं कहंदे ने गुरबिन ज्ञान ना होए, नॉलेज नहीं होएगी। अब तू पता क्या करता रहेगा? बस धूफ अगरबत्ती करता रहेगा, परफ्यूम छिड़कता रहेगा, चौर करता रहेगा, महंगे महंगे रुमाले चढ़ाता रहेगा। सर्दियों में तू उसके ऊपर कंबल कर देगा, गर्मियों में तू उसको एयर कंडीशन लगा देगा। इसका ना तू रख लेगा असी गुरु जी की सत्कार किया, सत्कार किया, सत्कार किया, सीस निभाया क्या थी है जा रिदे कुशुदे जाए। सो तेनू प्रैक्टिकल जीना पवेगा। कि पशुओं को मन होता है, सांप और कुत्ते का आपने एग्जाम्पल दिया था, तो क्या पशुओं को मन होता है तो वनस्पति और पत्थर को भी मन होता है? दूसरा, अगर पशुओं को मन होता है तो पशुओं और मानव के मन में क्या डिफरेंस होता है? तीसरा, अगर पशुओं का मानव का मन शांत हो जाता है तो बोलते हैं उसके अंदर दिया जल गया, और परमात्मा से उस सिद्ध पुरुष पर दिया जल गया, देवता हो गया। तीन बातें बोली मैंने। आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह एच खालसा। जसवंत सिंह जी, हमने जब प्रोग्राम किया तो हमने उसमें सीखा, सा सेवा कीती सफल है जिस सतगुरु का मन मन्ने। मन का मैना हमने समझा ऑर्डर, मन का मैना हमने समझा हुक्म, मन का मैना हमने ये समझा कि जैसे वो बताते हैं। मन का मैना हमने समझा सोचनी दा ढंग। पर पशु का मन होता है, कुत्ते बिल्ली का मन होता है, इंसान का मन होता है। ये बात मैंने इसलिए की कि हमको ये बात समझनी है बहुत बारीकी से कि गुरु शरीर नहीं होता। अब जिस एंगल से आपने क्वेश्चन किया उस एंगल से मन का मतलब होता है सोचने का ढंग, पैराडिम। अगर पेड़ भी है तो पेड़ का पैराडिम है रुख, दरवेशा नू लोड़िए रुखा दी जीरांद। पेड़ का पैराडिम क्या है? तुम पेड़ को पत्थर मारो, पेड़ तुमको फल देगा। पेड़ का पैराडिम क्या है? पेड़ का मन क्या है? कि पेड़ निम्रता में रहता है। पेड़ मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तात, पेड़ में जब फल लगते हैं वो नम्रता में रहता है। अगर मैं नम्रता में नहीं रहता, मेरे अंदर मेरे को पैसा ज़्यादा आ गया, ताकत ज़्यादा आ गई या गुण आ गए, तो उससे अगर मैं अकड़ के रहता हूँ, अहंकार से रहता हूँ, तो मैंने पेड़ के मन से सीखा नहीं, पेड़ के ढंग को समझा नहीं, पेड़ के पैराडिम को समझा नहीं। बस इतनी बात ही समझनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका?
अगर पशुओं को मन होता है तो फिर क्या नहीं, ये वनस्पति क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा, ये मानुख और पशु के मन में डिफरेंस क्या होता है फिर, अगर उसको पशुओं में मन है तो? पशु ये नहीं सोच सकता कि मैं एलिवेट कैसे हूँ। इंसान सोच सकता है कि क्या करने से मेरा क्या नुकसान होता है। वो ही मन है, सोच नहीं कटा, वो ही मन है। सोच नहीं कटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अगर पशुओं में मन होता है और मानुक में मन होता है तो मानुक का जो मन जब शांत हो जाता है तो उसके अंदर दिया जल जाता है और वो देवता हो जाता है। तो क्या पशुओं में भी ऐसा होता है क्या मन? देखिए, मैं गुरबाणी में से सीख रहा हूँ कि गुरबाणी बोलती है, आवन आए सृष्टि में बिन बूझे पशु टोर। अगर मैं इस सृष्टि में आया हूँ और मैं सच को नहीं समझता तो मैं पशु हूँ। देखने में मैं शारीरिक तौर पर भूपिंदर सिंह लग रहा हूँ। देखने में गलती से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं इंसान हूँ, पर मेरी आदतें करतूत पशु की मानस जात है। अगर मैं सच सीख लूँ तो मुझे चैन आ जाएगा। अगर मैं पशुओं वाला जीवन जीता हूँ तो मुझे चैन नहीं आएगा। चैन का मतलब मेरे अंदर के भगवान से मेरी एकमिकता नहीं बनेगी। लेकिन शारीरिक तौर पर मैं पशु नहीं हूं। मुझे पशु क्या क्या गलत करते हैं गुरबाणी में से सिखाया गया है। लेकिन पशु अगर कुत्ता है, कुत्ता वफादार कैसे होता है? उसको बोलते हैं स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर से वफादार रहता है, मालिक को छोड़ता नहीं है। स्वान तजत नहीं नित, नानक ये विध हर पजो एक मनो एक चित। अब मेरे को समझा रहे हैं, तूने कुत्ता बनना नहीं है, कुत्ते के अवगुण नहीं लेने हैं, द्वार द्वार स्वान जो डोलत, पर तेरे को कुत्ते का एक गुण लेना है कि कुत्ता मालिक का वफादार है। ऐसे तूने अपने भगवान का वफादार होना है। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾ ਆਏਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਚੀ ਚੋਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਰਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਜੀ। ਗੁਟਕੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੈਂਚੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਈਏ ਕਿ ਦੋ ਚੜਾਈਏ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਰੁਮਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਰੁਮਾਲਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੋਲੀਸਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਜੀ। ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ।
ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਯੈਸ, ਉਹ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਲਾ ਚੜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਮਲ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂक्स ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਨਮਰਤਾ। ਨਮਰਤਾ जी, और उस नम्रता का मैनू जवाब चाहिए है कि आजकल सोशल मीडिया से बहुत हो रहा है कि आपके साथ जो जैसा कर रहा है ना वैसा करो। अब जैसी दुनिया वैसे हम। गुरबाणी सानू कहती नम्रता नम्रता नम्रता। मैं शॉर्टकट विच कहना चाहूँगी कि साढ़े एक उदाहरण देनी हाँ कि ये सामने वाले ने मैनू एक बारी, दो बारी, तीन बारी मीनस 100 और लाइफ टाइम कोई साढ़े नाल इस तरह बोलता है तो उस नम्रता का दी एंड होना चाहिए है। गुरबाणी अनुसार दी एंड होना चाहिए या सानू उस तरह बनना चाहिए है कि असी उस तरह का बन ही नहीं सकते असी गुरसिख, क्योंकि सानू जी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब सानू सिखाता है कि नीवे बन के ही असी रहना है। बस एक खाली मैनू यह क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि असी अगे जीवन की जांच किवें करनी है, उनका दी एंड होना चाहिए है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? शकुंतला कालरा। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ असंत। और ਅਸੀਂ दूसरा कैसे डील करता है अकॉर्डिंग टू दैट अपना सुभाव खराब नहीं करना। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀ ਰਕਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾਵੇਂ ਪੱਥ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये चीज़ लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड में जाएगी शायद। हाँ जी। और यहाँ ऑलमोस्ट काफ़ी अदर्स भी है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी में ही बोलूँ। अच्छा अच्छा। भाई साहब भूपेंद्र सिंह जी, आप जी ने शब्द गायन किया सी ऑस्ट्रेलिया गायन किया था। उस टाइम में एक आपने बात कही थी कि जब मैं एरोप्लेन से आ रहा था तब एक भाई सचत मिला था, बोले कि मैं कुछ ड्यूटी एबल्स कुछ गुड्स या सामान लेके आ रहे थे, तो मेरा वो बोले कि बिना कुछ किए ही और वो मैं बच गया। तो हुआ क्या कि जब मैं
आपने बोला कैसे बच गए, ज़रा बताओगे? बोले कैसे क्या बच गए? एक्चुअली लेके तो आया हूँ पर मैंने कहा वाहिगुरु 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 कर जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली उसका टाइम बच गया। वो जो मैं जिसको रिश्वत दिया हूँ वो नहीं था। फिर कैसे हुआ? बोले क्या करें? और जब मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहा तो बोले कि जरा मेरे से जैसे ही मेरा टर्न आया और टाइम कोई शिफ्ट थी वो चेंज हो गई। जो शिफ्ट चेंज हो गई, मेरा जो ड्यूटी एबल आइटम्स थी और वो बंदा जिसको मैं रिश्वत दी थी वो बंदा ड्यूटी पे आ गया। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ इज दिस क्रिएट दिस ऑपरेशंस? हाउ इज क्रिएट्स दिस ऑपरेशन? ये क्रिएशन कैसे खड़ी हुई कि वो जिसको रिश्वत दिया वो नहीं था और जब मेरा टर्न आया। आपका नाम क्या है? मेरा वैसे धनराज सिंह नाम है। धनराज सिंह जी। हाँ जी। जिस इंसान ने मुझे ये बात बताई है वो ये सिचुएशन समझा तो रहा है, वो ये बता रहा है मैंने यहाँ से वाहिगुरु वाहिगुरु किया और भगवान वहाँ पर आ गया और भगवान ने मेरे को बचा दिया। भगवान ने आपको बचा। मतलब वो क्रिएशन कौन खड़ी किया, कैसे खड़ी हुई है? हमने गुरबानी में से एक बात सीखनी है, काम की बात सीखनी है। अब ये एग्जाम्पल को रहने दो। हाँ। काम की बात ये सीखनी है कि गुरबानी में भगवान का मतलब है जो मेरे को अच्छे गुण सिखाता है। जो डिस्ट्रक्टिव, गलत, नेगेटिव, इवल्स, डीमन थॉट्स और शॉर्ट कमिंग्स और गंदी आदतें सिखाता है उसको जम बोलते हैं, आन बोलते हैं, अवरा बोलते हैं, विडाण बोलते हैं, परत्रिय बोलते हैं। राइट? सो अकॉर्डिंग टू गुरबानी भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे आपने कुछ गलत किया और आपको बचा लिया। वही तो बात है ना, जब वो तो गलत किया बंदे ने, अब उसका टर्न आया कि बोलता है वो ड्यूटी। तो हमारे सामने रियलिटी है कि ड्यूटी चेंज हुई। हाँ। जब ड्यूटी चेंज हुई तो पुराना अफसर तो चला गया, नया जब अफसर आया तो उसने आके, मेरे को मालूम है मैं यहाँ इंडिया में बचपन में रहता था, हमारे को दवाई मिलती थी CGHS डिस्पेंसरी से और 7 बजे डिस्पेंसरी खुलती थी। हम 7 बजे लाइन पर लगते थे। बाहर से नंबर मिलता था, टोकन मिलता था कि डॉक्टर के कमरे में जाके टोकन के मुताबिक अंदर जाएंगे। तो हम खड़े रहते थे, वेट करते रहते थे। मेरी बारी आई 9 बजे, डॉक्टर 9 बजे आया और आके पता है क्या करते हैं? मेरे नंबर पे मैं खड़ा हूं और डॉक्टर कुर्सी पर नहीं है। पूछो कहाँ गया? आया 7 बजे, डिस्पेंसरी खुली है, डॉक्टर 9 बजे आया है। पर हुआ पता है क्या जी? सारे डॉक्टर मिलके चाय पीने गए हुए हैं। ये हमारा तरीका है, गलत तरीका है ना। तो ऐसे वो कस्टम ड्यूटी पे जो नया बॉस आया वो आते ही ड्यूटी पे चाय पीने चला गया और उसने जल्दी निकाल दिया उसे। अपनी भाषा में कहते हैं कि शाना बता के। हाँ, तो हमने ये सीखना है कि मैं कोई भी गलत काम करूं, गलत काम में रब मेरा सहाई नहीं होता। ए मेरी करतूत है या कोई समाजक तरीका कितने गड़बड़ है कि ओदे तो निकल गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀਆ ਦਿਬਾਣਾ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਦਿਬਾਣੋ कोई किथे भज जाया। सो हर दिबाण बसिया भक्तां के हृदय। जो अंदर से सोचता है ना, अंदर भगवान रहता है, अंदर की दरगाह में उसको पता लग जाता है कि मैंने गलत काम किया। पता लग गया था उसे, लग गया था ना। क्या शर्त है? आप लॉजिक बताओ धनराज जी। उसको पता था कि मैंने गलत किया है, अपनी नज़रों में वो गिरा हुआ था। सही है और नो? अगर अपनी नज़रों में वो गिरा हुआ था कि मैंने गलत काम किया है, उसकी निशानी पता क्या है? कि वो बोल रहा है अंदर से वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम। मतलब राम। क्योंकि पता है वो वाहिगुरु वाहिगुरु बोल भी रहा है तो वो डर के मारे बोल रहा है। चोट नॉट टू डायरेक्ट हार्ट टू टच। इसीलिए कहते हैं कि हाँ, इसीलिए गुरबानी में कहते हैं गॉड फियरिंग मत बनो, गॉड लविंग बनो। वाह, नॉट गॉड फियरिंग। वाह, गॉड लविंग बनना है। उसने वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह डर डर के किया है। भगवान डराता नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन से, वैसे तो गुरु महाराज बहुत बड़े थैंक्स भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ से हमको बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन अच्छा ठीक है, एक मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छा उपराला किया है फर्स्ट टाइम, तो इसके जरिए बोलने का चांस मिला है।
बाणी में महाराज का हुक्म है, पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो। वी आर ऑल पीपल सच इंक्लूड दिस इन्फ्लुएंस के अपन सब लोग फूल तोड़ रहे हैं। अगर वाणी के अनुसार से देखा जाए तो वास्तव में और विज्ञान के तौर पे भी देखा जाए तो एक वृक्ष फूल पत्ती यानी कि वो सजीव है। अपन ये कौन सा लव है या ये कौन सा अफेक्शन है कि अपन वो फूल को लेकर के परमात्मा यानी कि गुरु महाराज के ऊपर चढ़ के, ये गुरबाणी के अनुसार वास्तव में सही है? देखिए, एक गुरबानी में पंक्ति आती है, मनमुख भगत करें बिन सतगुर। मनमुख मतलब जो अपने मन की मर्जी करता है। मनमुख भगत करें बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई। सतगुर से पूछे बिना भक्ति नहीं होती। लेकिन हमने दूसरे लोगों की नकल मारी है, वो पेड़ से फूल तोड़ के लाते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए डालते हैं। गुरबाणी इसको नहीं मानती है। सो आपके क्वेश्चन के मुताबिक फूल तोड़कर लाना और गुरु ग्रंथ साहब पे चढ़ाना गुरबाणी की भक्ति नहीं है। गुरबाणी की भक्ति पता क्या है कि ये फूलों को पेड़ पे लगा रहने दे, ये भगवान की अपने आप आरती हो रही है, अपने आप पूजा हो रही है। पॉल्यूशन सिस्टम के अगेंस्ट ये पूजा नहीं है, पॉल्यूशन सिस्टम के अगेंस्ट ये भक्ति नहीं है। तू भगवान के गुण लिया कर, जैसे वहाँ पर फूल लगा हुआ है और खुशबू बांटता है, ऐसे तू फूल से इस चीज़ को सीख के मैंने भी सब जगह अच्छे गुणों की खुशबू बांटनी है। फूल तोड़ना नहीं है, नहीं तोड़ना गुरबाणी फूल की। को लाइक भी कर रहे हैं, फूल को पसंद कर रहे हैं तो उसको तोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम सब यही करते आ रहे हैं। ये मेरा बेटे ने हाँ, जो कर रहे हैं उनको मैं रोक नहीं सकता। चलो इसके बहाने मैं आपको बता दूं, जो कर रहे हैं धनराज जी, उनको मैं रोक नहीं ना सकता। रोक सकते बिल्कुल। अब इस समागम की जगह हो सकता है हमको सीख मिले। दैट्स इट, गुड जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा। I came here with lot of fear. I don't know I will get the answer of my question or not. Maybe not. No. I'm just kidding. As you said, we should be a practical in our real life. Lot of time I try to be a practical person in a actual life, but I can't. I want to ask that, how can we a practical man in our actual life? When you are not practical, give me some example. Even lots of time I try to do lot of work that I can't do. I don't know why. I have a fear to be I have a fear in my heart to be in a practical life. Why you have fear? Practical होना तो अच्छी बात है। Fear क्यों है? Why you have fear that you should not be practical? Public क्या कहेगी? So what? What is your practical? Tell me the specific item. For example, मैं शराब पीना चाहती हूँ, पब्लिक क्या कहेगी, तो मेरे को फियर है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली उसको नहीं करती। मैंने एग्जाम्पल बनाया। बच्चे, आपका क्या नाम है? अमनदीप जी। मैंने जान के नेगेटिव एग्जाम्पल बनाया। मुझे मालूम है, आई कैन फील कि आप शराब नहीं पीते। ऐसे ही कुछ भी रॉन्ग जो सामाजिक सिस्टम है उसमें रॉन्ग करना। But lots of time I did this. But when public says something to me, then I go into depression one time. No, what you did and what public said? When I came to Gandhidham, I didn't know how to speak in English. And school didn't give admission in that. Nowadays, I am topper of that class. Now they are appreciating me. I don't know how to express my happiness to them. No need to explain. Just enjoy your speaking English. And my second question is, how to live ourselves for others? How to live for others? Be a being of altruism. Altruism का मतलब होता है दूसरों के लिए जीना। और वो जीना क्या है? फीलिंग, स्पिरिट। आपने भगत पूरन सिंह जी सुने हैं? हैव यू हर्ड? ही डिड नॉट हैव मनी, बट ही हैड फीलिंग टू हेल्प द हैंडीकैप्स, राइट? और इतनी खतरनाक छूत की बीमारी वालों को हैंडल करना। एंड ही डिड। फीलिंग आनी चाहिए।
कि दूसरों के लिए क्रिएटिव काम कैसे करें. But at that time, how to remove fear from our heart? What fear you have? I do not understand I your have a question. fear of public. आप जैसे मैंने भगत पूरन सिंह जी का एग्जाम्पल दिया, आपको इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, व्हाई यू हैव फियर ऑफ पब्लिक? फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाना चाहते हैं, आपको पब्लिक का क्या फियर है? सपोज आप बिना डाउरी के शादी कराना चाहते हैं, आपको पब्लिक का क्या फियर है? वो बातें बनाते हैं. हैं? तो बनाने दो. लोग तो बातें बनाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. I will try. ओके.